ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 6 सितंबर सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఇది అంతర్క్షయ అని చెప్పుకోవడం దీనికి ఒక పేరు. క్షయ రోగం అనేటువంటిది దేహాన్ని క్రమక్రమేణా కనిపించే రీతిగా తగ్గిస్తుంది. కానీ ఈ అసూయ అనేటువంటిది లోపల చేరి అనేక విధములుగా కూడాను అతన్ని భస్మం చేస్తుంది. ఇది మహాఘోరమైనటువంటి వ్యాధి అని కూడా చెప్తూ వచ్చారు. इसीलिए इसका एक अन्य नाम अंतःक्षय है। क्षय रोग अर्थात राजयक्ष्मा शरीर को यूं दुर्बल कर देता है कि देखने पर ही क्षीण होना पता चल जाता है। परंतु यह ईर्ष्या अंदर घर कर अनेक प्रकार से उसे विनष्ट कर देती है। इसीलिए इसे एक भयंकर व्याधि कहा गया है। మనం తక్కువ స్థాయిలో ఉండినా ఎక్కువ స్థాయిలో ఉండినటువంటి వారిని చూచి ఆనందపడితే దైవము మన యొక్క దీన్ని కూడాను అనుగ్రహిస్తాడు. తనకు లేదని ఉన్నవారిని చూచి మనం అసూయపడితే తన యొక్క స్థితి మరింత దిగజారిపోతుంది. ఇది ఈనాడు కలియుగంలో సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటుండాలి ఈ అసూయ. యోగియందు, భోగియందు, జోగియందు, విరాగియందు, వైరాగియందు, సర్వులు ఎందు కూడాను ఈ అసూయ అనేటువంటి వ్యాధి వ్యాపించి ఉంటుండాలి. కనుక ఈ అసూయ చేతనే మానవుడు అశాంతికి గురి అయిపోతున్నాడు. निचले स्तर पर रहते हुए भी यदि हम ऊंचे स्तर पर रहने वालों को देखकर आनंदित होते हैं तो ईश्वर हमें भी अनुग्रह प्रदान करेगा। यदि अपनी अपनी स्थिति से निराश हो दूसरों को देखकर ईर्ष्या करेंगे तो स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। इस कलयुग में यह ईर्ष्या सर्वत्र व्याप्त है। ईर्ष्या रूपी यह व्याधि योगी में, भोगी में, जोगी में, विरागी में, बैरागी में, सब में सर्वत्र व्याप्त है। अतः इस ईर्ष्या के कारण ही मनुष्य अशांति का शिकार होता जा रहा है। ఒకానొక సమయం లోపల బుద్ధుడు భిక్షాటనమై బయలుదేరి వెళుతున్నాడు. తాను చేరవలసినటువంటి గ్రామం సమీపిస్తుండాలి. ఆ గ్రామం లోపల అందరూ కూడాను బుద్ధుని పైన అమితమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగినటువంటి వారు. అయితే గ్రామము సమీపిస్తూ ఉండగానే కొంతమంది ఈ రౌడీస్ దుర్మార్గులు చేరి ఇతన్ని అడ్డగించి అనేక విధములుగా అతన్ని దూషిస్తూ వచ్చారు. కానీ ఈ బుద్ధుడు ప్రయాణం చేయకుండా ఒక రాతి పైన కూర్చున్నాడు. एक बार बुद्ध भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। जहां उन्हें जाना था वह गांव निकट में ही था। उस गांव के सभी निवासियों को बुद्ध पर बड़ी आस्था थी। जैसे ही बुद्ध गांव के निकट पहुंचे तो कुछ गुंडे उनकी राह टोकते हुए उन्हें अनेक प्रकार से भला बुरा कहने लगे। बुद्ध आगे बढ़ने के बजाय एक पत्थर पर बैठ गए।
నాయన మీరు నన్ను దూషించటంలో ఉండినటువంటి ఆనందం మీకేమిటి అని ప్రశ్నించాడు. దీనికి కారణాలు వారు చెప్పకుండా మరింత హేయంగా అతన్ని దూషించడానికి ప్రారంభించారు. సరే, ఎంతసేపు మీకు ఇష్టంగా ఉంటుందో దూషించమని తాను కూర్చున్నాడు. సరే, వారు తిట్టి తిట్టి నోరు నొప్పి వచ్చేసింది. వారు ఇంకా వెళ్ళిపోవటం సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. फिर उनसे पूछा, वत्स, मेरी निंदा करने में तुम्हें क्या आनंद प्राप्त होता है? कारण बताने के बदले वे उनकी और भी घृणापूर्ण शब्दों में निंदा करने लगे. खैर, जितनी देर चाहो निंदा करो, कहते हुए बुद्ध वहीं बैठे रहे. गाली दे देकर वे लोग थक गए और जाने ही वाले थे. అప్పుడు వారికి వెళ్ళిపోయే ముందుగా బుద్ధుడు చెప్తున్నాడు, నాయన, రాబోయేటువంటి గ్రామం లోపల నా పైన అమితంగా ప్రీతి కలిగినటువంటి వారు అందరు. నేను ఆ గ్రామంలో చేరిన తర్వాత మీరు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తే మిమ్మల్ని ముక్కలు ముక్కలు చేస్తారు. కనుక మీ ప్రమాదమును తప్పించే నిమిత్తమై మీరు ఎంతవరకు నన్ను దూషించాలని ఇష్టం ఉంటుందో అంతవరకు దూషించడానికి మీకు అవకాశం ఇచ్చే కోసం ఇంతసేపు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను. तभी बुद्ध ने उनसे कहा, वत्स, इस आने वाले गांव में मुझ पर प्रेम दर्शाने वाले बहुत हैं. उस गांव में मेरे पहुंचने के बाद यदि तुम ऐसा व्यवहार करोगे तो लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे. इसीलिए तुम्हें खतरे से बचाने के लिए, तुम्हें जी भरकर मेरी निंदा करने के लिए, तुम लोगों को अवसर देने के लिए ही मैं यहाँ बैठा रहा. ఇతరులను సంతోష పెట్టాలంటే మనం ఎన్నో విధములుగా శ్రమపడాలి, ధనం వ్యయం చేయాలి. కనుక నేను ఈనాడు ఏ నయా పైసా ఖర్చు చేయకుండా ఏ విధమైన శ్రమ పడకుండా మీకు ఇంతమందికి ఇంత ఆనందాన్ని నేను అందిస్తున్నాను. ఎంత హాయి నాకు ఈనాడు అన్నాడు. दूसरों को आनंदित करना है तो बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और धन भी खर्च करना पड़ता है. आज मैंने एक भी पैसा नहीं खर्च किया, न ही कोई श्रम उठाया, लेकिन इतने लोगों को इतना आनंदित किया. आज मुझे बड़ा आनंद हो रहा है. నన్ను దూషించడం మీకు ఆనందంగా ఉండాలంటే ఆ ఆనందానికి నేనే కదా కారణం. ఏదో విధముగా నీకు తృప్తి కలిగించాను కాబట్టి ఈ తృప్తి కలిగించడం చేత నాకు చాలా ఆనందం అనుకున్నాడు. పరులను సంతృప్తి పెట్టే కోసమని అనేక మంది చట్టాలు కట్టిస్తారు, పావులు ప్రవహిస్తారు, ఇంకా అనేక విధమైనటువంటి యొక్క ఉపకారమైనటువంటి కర్మలు ఆచరిస్తారు. కానీ ఇంత శ్రమ లేకుండా ఈ విధంగా ఈ దుర్మార్గులను సంతోషపెట్టినానంటే నేను ఎంతో గొప్ప పని చేసినటువంటి వాడిని అన్నాడు. मेरी निंदा करने से तुम्हें आनंद हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे आनंद का कारण मैं ही हूँ. किसी न किसी रूप में मैंने तुम्हें संतुष्ट किया. यही मेरे लिए बड़ी संतुष्टि है. दूसरों को आनंदित करने के लिए कुछ लोग सराय बनाते हैं, कुएं खुदवाते हैं, अनेक प्रकार के परोपकार संबंधी कार्य करते हैं. लेकिन इतना श्रम उठाए बिना तुम्हें मैंने आनंदित किया तो मैंने बहुत बड़ा कार्य किया. మరి ఇంకా ఒక విషయం ఏంటంటే దీనిని వారికి చక్కగా హృదయానికి హత్తుకునేటట్టు బోధించాడు. నీ ఇంటికి ఒక బిచ్చగాడు వచ్చాడు. భవతి భిక్షాందేహి అని అడిగాడు. నీవు బిచ్చం తీసుకుని వచ్చావు, కానీ నేను అడిగిన బిచ్చం కాలేదు, మరొక బిచ్చం తెచ్చావు. అప్పుడు నేను ఆ బిచ్చం తీసుకోకపోతే నీవు ఆ బిచ్చాన్ని ఏం చేస్తావు అన్నాడు. इतना ही नहीं, बुद्ध ने हृदय को छू जाने वाली एक और बात कही. वत्स, एक भिखारी तुम्हारे द्वार पर आया और भवती भिक्षांदेहि कहा. तब तुम कुछ भिक्षा लाए, परंतु मैंने जो भिक्षा मांगी उसके बदले कुछ दूसरी भिक्षा लाए. तब यदि मैं वह भिक्षा नहीं लेता तो तुम उस भिक्षा को क्या करते? నీవు తీసుకోకపోతే నేను వెనుక తీసుకుని పోతాను, ఆ బిచ్చం నాకే చెందుతుంది అన్నాడు. అదే విధంగానే నన్ను నీవు దూషణ అనేటువంటి బిచ్చం తెచ్చి నాకు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించావు, దాన్ని నేను తీసుకోలేదు. అప్పుడు ఈ బిచ్చం ఎవరికి చేరుతుంది? రీడైరెక్ట్ నీకే చేరుతుంది. కనుక నిన్ను నీవే దూషించుకుంటున్నావు కానీ నన్ను కాదు. तब उसने कहा, यदि तुम वह भिक्षा नहीं लेते तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा, वह मेरा ही होगा.
बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार तुम मुझे निंदा रूपी भिक्षा देना चाह रहे थे, परंतु मैंने उसे नहीं स्वीकारा। अतः वह किसका होगा? रीडायरेक्ट तुम्हें ही प्राप्त होगा। अतः तुम स्वयं की निंदा कर रहे हो, मेरी नहीं। మనం ఒక రిజిస్టర్ కవర్ కింద రాసి ఒక మిత్రునికి పోస్టులో వేస్తే ఆ ఫ్రెండ్ ఆ రిజిస్టర్ కవర్ తీసుకోకుండా పోతే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏమవుతుంది? ఆ కవర్ అది రీడైరెక్ట్ ఎవరు పంపించారో వాళ్ళకి చేరుతుంది. అదే విధంగానే నీవు ఒకరిని దూషిస్తూ వచ్చావటంటే లేక ఒకరిని విమర్శిస్తూ వచ్చావంటే వారు దానిని లక్ష్యం చేయకపోతే ఆ విమర్శ నీకే రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది. కనుక ద్వేషం అనేటువంటిది, అసూయ అనేటువంటిది తమను తాము బాధించుకోవటమే తప్ప అన్యులను బాధిస్తున్నామనుకోవటం కేవలం అల్పతృప్తి. यदि हम एक रजिस्टर कवर लिखकर एक मित्र के नाम पोस्ट में डालते हैं और यदि वह मित्र उस रजिस्टर पोस्ट को नहीं लेता है, तो पोस्टल डिपार्टमेंट में क्या होता है? वह रीडायरेक्ट होता है, लिखने वाले को ही प्राप्त होता है। यदि तुम किसी की निंदा करते हो या आलोचना करते हो और यदि वह उसकी उपेक्षा करता है, तो वह निंदा रीडायरेक्ट होकर तुम्हें ही प्राप्त होती है। यदि ईर्ष्या और द्वेष युक्त व्यक्ति समझता है कि दूसरों को कष्ट दे रहा है, तो वह अल्प तृप्ति ही है। वास्तव में स्वयं को कष्ट देना ही है। కనుక ఈ అసూయ అనేటువంటిది మానవుణ్ణి అనేక విధములుగా తనను తానే హింసిస్తుంది. ఒక మహర్షి అనేక ఫలపుష్పములతో కూడినటువంటి యొక్క వనమును పెంచుకుంటూ ఉన్నాడు. కానీ అతని ఎందుకును ఒక విధమైనటువంటి యొక్క అహంకారం బయలుదేరింది. అహంకారం బయలుదేరేటప్పటికే అసూయ కూడా ప్రవేశించింది. ఈ అహంకార అసూయలు రెండూ చేరేటప్పటికే ద్వేషం అనేటువంటిది అక్కడ అటెండ్ అయింది, దానికి చేరిపోయింది. यह ईर्ष्या अनेक प्रकार से मानव को कष्ट देती है। एक महर्षि कई प्रकार के फल और फूलों से युक्त एक बगीचे को पोस रहा था। उस महर्षि में एक प्रकार का अहंकार आरंभ हुआ। जैसे ही अहंकार आरंभ हुआ, ईर्ष्या भी उसमें प्रविष्ट हुई। जैसे ही अहंकार और ईर्ष्या प्रविष्ट हुए, तो वहां द्वेष भी उपस्थित हो गया। ఒకానొక సమయం లోపల భగవంతుడు ఇతను ఋషిగా ఉంటున్నాడు, సన్యాస వస్త్రము ధరించాడు, వేషము చూస్తే కాషాయము, హృదయం చూస్తే కషాయము, ఇది ఏదైనా మార్చాలి అని ఉద్దేశంతో ఒక ముసలి బ్రాహ్మణ వేషంతో ఆ తోటలో ప్రవేశించాడు భగవంతుడు. ఒక చెట్టు దగ్గరికి పోయాడు ఈ ముసలి బ్రాహ్మణుడు. ఆహా, ఈ వృక్షం ఎంత అభివృద్ధి అయిపోయింది, ఈ ఫలపుష్పాలు ఎంత ఆనందంగా ఉంటున్నాయి చూడడానికి, దృశ్యంలో ఎంతైనా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుండాలి, ఈ తోటను పెంచిన వారు ఎవరు అని ఈ ముసలివాడు ఆ సన్యాసిని ప్రశ్నించాడు. एक बार ईश्वर ने देखा, यह तो देखने में ऋषि है, गेरुए कपड़े पहना है, वेश सन्यासी का है, लेकिन व्यवहार कसाई का। ऐसा विचार कर इसे सुधारने के लिए ईश्वर एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में उस बगीचे में पहुंचे। बूढ़ा ब्राह्मण एक फले फूले पेड़ के पास पहुंचा और उस सन्यासी से पूछा, वाह, ये पेड़ कितने अच्छे ढंग से बढ़ा है, इसके फल फूल देखने में कितने आनंद प्रदान कर रहे हैं, दृष्टि के लिए अत्यंत आकर्षक हैं। इस बगीचे को पोसने वाले कौन हैं? గోళాసి వచ్చి, అయ్యా బ్రాహ్మణోత్తమ, రాత్రింబవులు బిడ్డలను పెంచినట్టు పెంచినాను, కంటిరెప్పవలే కాపాడుతూ వచ్చాను. ఈ మొక్కను నాటింది నేను, ఇది అభివృద్ధి పరిచింది నేను, నేను చీడబడితే తీసేసింది నేను, వేరు పురుగు కొడితే కొట్టేసింది నేను, ఈ రోడ్లు వేసింది నేను, ఈ అలంకారం చేసింది నేను, కటింగ్స్ చేసింది అన్ని నేను 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 అనుకుంటూ వచ్చాడు పాపం. सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मणोत्तम, दिन रात एक कर बच्चों की भांति इन्हें मैंने पोसा है। जैसे पलक आंख की रक्षा करती है, वैसे ही मैंने इनकी रक्षा की। इस पौधे को मैंने रोपा है, इसे मैंने ही बढ़ाया है, इसमें कीड़े मकोड़े लगे तो मैंने ही हटाया।
ये रास्ते मैंने बनाए, ये साज सज्जा मैंने की, पेड़ पौधों को मैंने ही तराशा। इस तरह हर बात के लिए वह मैं ही कहता रहा। ఈ తోటనే నా ప్రాణంగా చూసుకుంటున్నాను. ఒక్క తోటమాలి లేడు. నీరు తోడటం నేనే, ఎరువు వేయటం నేనే, రోడ్డంతా క్లీన్ చేయటం నేనే. ఈ ఫలపుష్పాలను పరుల కోసమే నేను పెంచుతున్నానన్నాడు. సరే, కొంతసేపు అయినప్పటికీ ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడు బయట వెళ్ళిపోయాడు. కొంతసేపట్లో ఒక గోవు వచ్చింది. ఆ గోవు వచ్చి ఈ పుష్పములుగా విచ్చినటువంటి దీన్నంతా తాను తొక్కి అన్ని విధాల చిన్నాభిన్నం చేస్తుంటుండాలి. उसने आगे कहा, इस बगीचे को प्राण समान देख रहा हूं, एक माली भी नहीं है, पानी मैं ही खींचता हूं, खाद मैं ही डालता हूं, रास्ते मैं ही साफ करता हूं, इन फल और फूलों को दूसरों के लिए ही मैं उगा रहा हूं। इसके बाद ब्राह्मण चला गया। थोड़ी देर के बाद एक गाय आई। वह फूलों की क्यारियों को पैरों से रौंदने लगी। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम प्रशांति गाथा के रूप में विख्यात हमारी वीडियो सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतर्गत हम प्रशांति निलयम एवं इसी की तरह महत्व वाले भगवान बाबा से संबंधित विशिष्ट स्थानों से जुड़ी कथाओं का वर्णन करते हैं। आज की कहानी मां ईश्वरम्मा जी के समाधि स्थल की कथा के बारे में है। साईं राम। प्रशांति गाथा धारावाहिक श्रृंखला में एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत है। आज हम पुटपर्ती के एक बड़े ही विशेष, परम शांत और पूजनीय स्थान के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यह स्थान है भगवान श्री सत्य साई बाबा को जन्म देने वाली माता परम श्रद्धेय ईश्वरम्मा और पिता श्री पेद्द वेंकप्पा राजू का समाधि स्थल, जिसे हम आमतौर पर मां ईश्वरम्मा समाधि के नाम से जानते हैं। यहां आते ही हमें अपने आप ही अलौकिक आध्यात्मिक वातावरण व शांति महसूस होने लगती है। हालांकि ये जगह प्रशांति निलयम के मुख्य आश्रम से बाहर स्थित है, लेकिन जैसे ही हम इस स्थान में प्रवेश करते हैं तो हमें ठीक वैसी ही अनुभूति होती है जैसी हमें प्रशांति निलयम में प्रवेश करने पर होती है। कोमल रेत से घिरे हुए इस पावन स्थल में पेड़ों और फूलों से आती शीतल हवाओं के बीच चिड़ियों की मीठी चहचहाहट मन में आनंद की मधुर लहर दौड़ा देती है। 6 मई सन 1972 को सुबह सवेरे मां ईश्वरम्मा ने एकाएक बाबा को पुकार लगाई, स्वामी स्वामी। स्वामी ने ऊपर सीढ़ियों की ओर से तुरंत जवाब दिया, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और स्वामी अपने हाथों में रेशम की एक साड़ी लेकर सीधे मां ईश्वरम्मा की ओर बढ़े। मां ईश्वरम्मा ने उसी समय अपना शरीर छोड़ा। स्वामी की बड़ी बहन मां ईश्वरम्मा के समीप ही खड़ी थीं। स्वामी ने उनसे कहा कि वे सदैव जीवन के एक ऐसे अंत के लिए प्रार्थना करती थीं जिसमें उन्हें जरा भी कष्ट न हो, और आज उन्होंने इसे पा लिया। वे बेहद ही सौभाग्यशाली हैं।
ऐसा कहते हुए स्वामी ने उन्हें रेशम की साड़ी ओढ़ा दी। मां ईश्वरम्मा को संपूर्ण विश्व में अत्यंत सम्माननीय और वंदनीय स्थान प्राप्त है। ऐसा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें युगावतार भगवान श्री सत्य साई बाबा की मां होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि ऐसा इसलिए है कि उन्होंने भगवान के अनुग्रह से प्राप्त इस अवसर का पूरा लाभ लेते हुए मानवता के कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर दिया। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के मानव सेवा के सभी कार्यों की जड़ों में वास्तव में मां ईश्वरम्मा की वो गंभीर प्रार्थनाएं छुपी हुई हैं जो उन्होंने स्वामी से की थीं और जो स्वीकार भी हुई और साकार भी हुई। मां ईश्वरम्मा ने जब स्वामी से प्रार्थना की कि स्वामी यहां एक पाठशाला बनवा दें, तो पहले एक पाठशाला बनी, लेकिन बाद में भगवान का यह संकल्प श्री सत्य साई उच्च शिक्षण महाविद्यालय के रूप में साकार हुआ। मां ईश्वरम्मा का दिल आसपास के ग्रामीणों के इलाज के लिए तड़प उठा और उन्होंने स्वामी से एक अस्पताल बनवाने की प्रार्थना की। जब श्री सत्य साई जनरल अस्पताल बनना प्रारंभ हुआ तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता उन्हीं के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उन्होंने स्वयं उन महिला भक्तों के साथ काम किया जो अस्पताल के निर्माण स्थल तक रेत, पत्थर और ईंट पहुंचाने की सेवा दे रही थीं। वो खुद ग्रामीणों के घर घर जाती और उन्हें नीम हकीम इलाज करने वालों के पास न जाने की समझाइश देती थीं। वे स्वयं महिला रोगियों को अस्पताल तक ले जाती और जब उन्हें भर्ती कर लिया जाता तो वे तब तक वहां रुकती जब तक कि वे ठीक नहीं हो जाती। गांव के लोगों को यह अनुभव होता था कि यहां हमारे गांव में एक ऐसी मां है जो उनके स्वास्थ्य व कुशल क्षेम की चिंता करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और उनके कल्याण तथा उनकी खुशी के लिए सदैव तत्पर हैं। इस तरह मां ईश्वरम्मा ने एक छोटा सा अस्पताल बनाने की प्रार्थना की, मगर भगवान का यह संकल्प बहुत बड़े और उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पतालों के रूप में साकार हुआ। मां ईश्वरम्मा ने स्वामी से गांव में पानी की व्यवस्था के लिए एक कुआं बनाने की प्रार्थना की, तो स्वामी ने इस प्रार्थना का उत्तर श्री सत्य साई जल प्रदाय परियोजना के माध्यम से दिया, जिसके द्वारा हजारों गांवों तक आज निःशुल्क पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जबकि मां ईश्वरम्मा से भक्तों का दर्द देखा नहीं गया और वे उन भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए उनकी ओर से स्वामी से बात करने के लिए पहुंच गईं। एक बार पश्चिम गोदावरी क्षेत्र से एक दंपत्ति अपने बीमार बच्चे को लेकर पुट्टपर्ती आए थे। वे 7 दिन तक भगवान के दर्शन करते रहे, लेकिन उन्हें भगवान बाबा के सामने अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला और वे हताश होकर लौटने वाले थे। इसी समय मां ईश्वरम्मा ने उन्हें देखा और उनकी पीड़ा को सुना, तो वे अपने हाथों में उस बच्चे को लेकर सीधे स्वामी के कमरे में जा पहुंची। उन्होंने स्वामी से कहा कि स्वामी, आपको इस बच्चे के लिए कुछ करना ही होगा। स्वामी ने उनकी बात को बड़े धैर्य से सुना और सहजता से कहा, देखता हूं। लेकिन मां ईश्वरम्मा नहीं मानी और उन्होंने कहा, नहीं स्वामी, आपको इस बच्चे को स्वस्थ करना ही होगा। स्वामी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उस बच्चे को स्वस्थ कर दिया। मां ईश्वरम्मा की कहानी केवल भगवान की माता होने की कहानी नहीं है, बल्कि इस परम सौभाग्य को पाकर एक माध्यम बन जाने और फिर मानवता तक सेवा की अविरल धारा बहाने की गाथा है। शायद इसलिए ऐसे अनेक अवसर देखे गए जबकि मां ईश्वरम्मा के केवल नाम लेने या जिक्र आने पर भी स्वामी की आंखें भर जाती थीं। चाहे प्रवचन हो या कोई वार्तालाप हो रहा हो या भजन हो रहे हों, पर मां ईश्वरम्मा का नाम आते ही स्वामी
भाव विभोर हो जाते थे। स्वामी स्वयं प्रत्येक वर्ष ईश्वरम्मा दिवस यानी 6 मई को इस पावन स्थल पर आते थे और मां ईश्वरम्मा तथा पिता श्री पेद्द वेंकप्पा राजू की समाधि पर वस्त्र, पुष्प आदि समर्पित कर दैहिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने का संदेश संपूर्ण मानवता को देते थे। सन 2010 में भगवान शारीरिक रूप से 85 वर्ष की आयु के थे और मई में जब भगवान बाबा यहां आए तब ये बड़ा ही मर्मस्पर्शी दृश्य था। इसी वर्ष यहां 2 मूर्तियों की स्थापना हुई। ये मूर्तियां जयपुर के एक शिल्पकार ने बनाई थीं। फिर इन्हें पुट्टपर्ती लाया गया। स्वामी ने 1 माह से अधिक समय तक इन मूर्तियों को अपने निवास यजुर मंदिर में रखा। हर दिन जब स्वामी अपने कमरे से बाहर आते थे तब वे इन मूर्तियों की ओर निहारते थे। वे इन्हें देखकर बहुत खुश होते थे। स्वामी कहा करते थे, देखो मां की ओर देखो, कितनी सुंदर लग रही है ना। फिर स्वामी मूर्ति के पीछे की ओर जाकर कहते कि देखो उन्होंने कितनी सफाई से, कितने सुंदर तरीके से अपने बाल गूंथे हुए हैं। स्वामी कानों की बालियों की ओर देखते और कहते, देखो ये बालियां उन पर कितनी शानदार लग रही हैं। वास्तव में तो भगवान समय और संबंधों से परे होते हैं, लेकिन इन सब घटनाओं के माध्यम से वे संभवतः हमें ये सिखा रहे थे कि एक बच्चे का मां के साथ संबंध कितना शक्तिशाली, मधुर, मीठा और गहरा होना चाहिए। श्री सत्य साई सेवा संगठन के शैक्षणिक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 6 मई को श्री सत्य साई बाल विकास के कार्यक्रमों के लिए समर्पित किया जाता है और लगभग 1 सप्ताह तक कई आयोजन संपन्न होते हैं। मां ईश्वरम्मा की याद में आयोजित ये आयोजन बच्चों में भी अपनी माता के प्रति आदर भाव उत्पन्न करने का एक माध्यम बन गया है। मां ईश्वरम्मा की समाधि का ये स्थान आध्यात्मिक समृद्धि से भरपूर है। नारियल के ऊंचे वृक्ष और दिन भर अनवरत बहती हुई शीतल पवन इस स्थान को अपार शांति से भर देती है। एक मां के द्वारा की गई प्रार्थना कभी भी अस्वीकार नहीं होती, लेकिन जरा इस दिव्य मां की प्रार्थना के बारे में कल्पना कीजिए। इसलिए हमारे द्वारा मां ईश्वरम्मा की समाधि पर उनसे की गई प्रार्थनाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। उनका शुभ आशीष हमारे लिए अत्यंत ही शक्तिशाली होता है। अगली बार जब आप प्रशांति निलयम आएं, तो यहां आना बिल्कुल मत भूलिएगा और अवतार की दिव्य माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करिएगा और उनसे अपने मन की बात भी जरूर कहिएगा। उनका ममतामयी सानिध्य आपको आह्लादित कर देगा। धन्यवाद। जय साईं राम। जन्म दिया तूने साईं को, हम पे किया उपकार। जन्म दिया तूने साईं को, हम पे किया उपकार। ईश्वर आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे प्रशांति गाथा के रूप में विख्यात हमारी वीडियो सीरीज से ली गई एक कड़ी। आज मां ईश्वरम्मा जी के समाधि स्थल की कथा के बारे में एक कहानी प्रसारित की गई थी। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है।
उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।